तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है, यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहें। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। Ser mirar sira mati mutro. Lawing as do my market das kami paitless pa. Ili ni apne herit so vitro kauto. Lanap sa bibig so winik. Kaya inahikik na kao ko kami niya sa resyon. Kaya sa mimlasik ka mahamit mo kaut mutna hati sisap. Die fuck. Die fuck wer ist was lässt es sein eigentlich? Mal na der Yushu. बस मैं ना हिसाब में आऊँ तो अच्छा भी खेत में बसा रहा है मैं है ना हंसी बता रहा है तो
arkadaşlar bizim yağmurda bir varlık bileyim. Caramba, o mestre hoje deve ser calma. Hoje nós vamos para ele hoje na Adam. Para mim que ele tá lá me mirava que suge. O te é do que tá famas. E de lá dirá se lá. Ah, o te sana. As nem mal não vete. Não estás que eu digo. Sana que sabe que não sabe. Bem, pois nós na atrás desse sare de cima do carro. Ahora son los seis. ¿Qué? Ele não estou mesmo novo. هذا ما أقول لك المكارير بس. أنا لا أمشي. الناس كوني وكرامة. بودو تاع ساري مدك متاج نفسه. وكان يركب مدك صوتنا. مش لقنا حب سابرين. بودو الحالة تسي من سرهم بش. بيتمو يتعشم. يسيقا قوشلوك بسي. راح نفس سوت سابرين. نيجل. Ya estoy en pelotita así que avanza. Esto sabe de nada. Y voy a seguir sin él. مش نادي انك فيكسيش دي سيبش نموت عصر موت مارك يروبي نام تابي بيش نمي لكن عاش نبدا زيك بابا انا مش دي برقادي داشيري مسازي فاترة الشرطة ملابا بعدين بش نقص صبري مقصة على قرار نفسه يفتبع متحف هيك شنو تحسي رأيي قاعد دوبي سنيني بكش دبا مو بيرام Vika vaikka sekin ase. Että siinä nyt ruhni mun nähdä olisi mut. Vuoti tuhrega. Ja niistä vahvasti on hyvin pitkä muista nähdä. Me Kaksi ilep. Habing muskidi ng dapat sa atas. Akira malaki na sigad na signalasyon o kahut. Bilip besunikal. Aksa akira man nakstu. Ay gaki nila siya hatasis na rulas sa araf lasik. Henry Zafur Perasi. Sisi kireti sikani sikishin ma. Ayuda gusto ko pasrap sa nairap dat Mohammed Salas. Alam siya kalkinas bikta hubbot na humaram. Wala siya pinimihin alam siya ko sa arafes. Ay kinihis ka siya rin. والله خلفه يشمل بس مثل كلامك ده بالمناسبة وش نيات
الفادي بس مو طعمي من صغير بس راجع بين شلوك برامو شو براسنا خبصة بريمن فعل خيكسو مو كده وشوف بالأول مدة تعبرك مو تنسو اي راولا كلام شكلي انا روي شكوش دي ما ها أنا ويرش نمس بس هنا بشدي عمري بنت صغير سجل بيكتوي عليك ليش كوش دينا لعم شك بيكنا أنا ويت ناجم أنا يقولوا تين رب ساسور مريم أنا عارفة بس تسلق بس يجنو مهمت سأعرف هس نكت يقول لك داش اسمه روي يقول لك على تسيم سغام هنا سورة وبيسي بقى علي رحمة نشنم mereka suruh besok sama ini razu gini sih sudah tahu mah marah وش عم يقد نزيد مسك عم مدة سكينة نسيت صبيك مرة أكش شوك ينتكن ما يمكننا زادنا يمت همرك زاري معك ركمت يكون بشدين بس عازفين عسام مقبوط ويجري لي كلك هنا سورة بلو بشمو كي مسك بس باي وهيك زي ما سيشنو موتني من العشرين Burak no batas na mo tingin sa lemin ako sa perasa. Muda se que sugi ni las necesita. Okay. Direct na rap na big mo sep. Big eu itali da sugi na mo. Rapi que nagparak tab. Darura sa. Direct ma que se está shuki shuk. No itas na. Sugi tas ni nanda. أنا أشتبه أن المتلعب بالأكبر أمدك يقول لك الشخوف برا مدب أنا بقول لك نكسة سرين بايلك إنسان فتاين إذا مو يندنا أشتبه يقول زرنا بقى إذا مو تقول نايش بس نسأل متأكل أي المتأيدين يستعبرون بغير الغيدة أزجنا من على المعسك بصرا أسوف فهم صعبرين من جلو بريك نابك إيرا هموت نكل جلو بريك نامك سوا جلو بريك أو ديناميك أنواع دهجا بيجي من مستفاقات ويرالي زيج نمان يقول لك نيش لوكا سامت bang ngoài lên mắc xích bắt sát đi xây đâu
ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड्स अब लास्ट एपिसोड्स होने वाली हैं, क्योंकि अब ये ड्रामा इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। लेकिन ड्रामा खत्म होने से पहले पहले कशमाला एक और जान लेने वाली है और अब बाबा साईं का भी टाइम आने वाला है। तो कशमाला अब बाबा साईं को क्यों मारेगी और बाबा साईं ने ऐसा क्या कर दिया जो कशमाला उनकी भी दुश्मन बन गई, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि दुआ सबूत पे सबूत इकट्ठे करी जा रही है और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े चश्मे लगाकर सरफराज से मिलने पहुंच जाती है, जहां मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इसको और कौन से सबूत चाहिए। जहां अब दुआ को भी नौशेरवा ने सरफराज के साथ देखकर एक बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद वो जाफर से कहता है कि जाफर तलाक के पेपर्स बनवाओ, मैं अब दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। जहाँ जाफर भी जाते जाते कशमाला को खुश कर जाता है और कशमाला से कहता है कि कशमाला बीबी नौशेरवा साईं अब दुआ को तलाक देने वाले हैं। जहां ये सुनकर कशमाला तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और जाते ही अम्मा साईं और अब्बा साईं को भी बता देगी और कहेगी कि नौशेरवा ने जाफर को भेजा है तलाक के पेपर्स बनवाने। तभी अम्मा साईं भी काफी ज्यादा खुश होंगी और नौशेरवा को अपने पास बुलाएंगी। जहाँ फिर वो नौशेरवा से कहेंगी कि तुम अपने फैसले से दुखी हो नौशेरवा, और तब नौशेरवा कहेगा कि पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि यही फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि दुआ मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वो सरफराज के साथ ही शादी करना चाहती है, तो मैं उसे बांध कर नहीं रखूंगा। जहाँ फिर अम्मा साईं नौशेरवा से कहेंगी कि नौशेरवा तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर तुम इसी तरह परेशान और दुखी रहोगे तो कैसे चलेगा। तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम्हारी कशमाला है और बच्चे हैं, यही अब तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली है नौशेरवा। अब तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुम्हारा इंतखाब गलत था और अब ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो और कशमाला को उसका हक दो और बच्चों को अपने साथ रखो। अब हम लोग जब भी हवेली वापस जाएंगे तो हमारे साथ कशमाला और बच्चे वापस नहीं जाएंगे नौशेरवा, वो अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जहाँ अब नौशेरवा उनकी सारी की सारी बातें सुन लेगा। जहाँ दूसरी तरफ कशमाला भी ये सारी की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी कि उसकी मेहनत रंग ले आई। जहाँ दूसरी तरफ अब सुम्बुल का भी बुरा टाइम शुरू हो गया है और उसकी भी दो नंदे और उसकी सास उसके नाक में दम कर देगी, जिस तरह ये और इसकी माँ और इसका भाई फिजा के नाक में दम करते थे। लेकिन फिजा तो बेचारी मासूम थी, जिसने इन लोगों को पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। जहाँ भी सुबह होते ही सुम्बुल की सास सुम्बुल को काम पर लगा देगी और कहेगी कि चलो नाश्ता बनाओ, और जैसे ही सुम्बुल नाश्ता बनाने लगेगी लेकिन उससे लेट हो जाएगी, तब उसकी नंद आकर उसको बातें सुनाएगी और कहेगी कि अम्मा आपकी तो बहू बहुत ही नकारा है और किसी काम की नहीं है, बहुत ही सुस्त किस्म की लड़की है, अभी तक इससे नाश्ता नहीं बना। जहाँ फिर उसी की दूसरी नंद कहेगी कि हाँ अम्मा, ये सुस्त होने के साथ साथ ड्रामेबाज भी बहुत है, यही ड्रामे दिखा दिखा कर तो इसने भाई को अपने चक्कर में फंसाया है। और तब सुम्बुल कहेगी कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम लोग कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। और तब सुम्बुल की सास कहेगी कि बस बस अब ये ड्रामे मत करना हमारे सामने, अब ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करो हमारे सामने। और फिर यहाँ पर सुम्बुल की सास सुम्बुल को काफी बातें सुनाएगी और कहेगी कि एक काम जो तुमको दिया था वो तो तुमसे हुआ नहीं। अब यहाँ पर सुम्बुल इनकी बातें बर्दाश्त नहीं करेगी और वापस अपने घर चली जाएगी। जहाँ यहाँ पर सुम्बुल को एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो खिजर की, और जिस तरह से अब खिजर की माँ और बहनें बिहेव कर रही हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि एक दिन खिजर सुम्बुल को लेकर अलहदा हो जाएगा और इस तरह की माएं और बहनें फिर अकेली ही रह जाती हैं, क्योंकि इनके तो रोज के झगड़े ही रहेंगे। जहां सुम्बुल भी अपनी जुबान बंद नहीं करेगी और इनको टका टका कर जवाब दिया करेगी, जिसके बाद खिजर थक हार कर या तो सुम्बुल को तलाक दे देगा या फिर अपनी माँ और बहनों से जान छुड़वाकर कहीं और जगह ले लेगा। जिसके बाद खिजर को जैसे ही पता चलेगा कि सुम्बुल नाराज होकर अपने घर चली गई है तो वो सुम्बुल को मनाने घर पहुँच जाएगा। जहाँ अब खिजर को देखकर सरफराज का तो पारा हाई हो जाएगा, क्योंकि वो खिजर से उस दिन का भी बदला लेना चाहता है जहाँ उसकी माँ ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। और तब सरफराज खिजर से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, जाओ यहाँ से, अब सुम्बुल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अपनी बहनों और अपनी माँ की जुबान को कंट्रोल करो। जहाँ फिर खिजर कहेगा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ की जुबान कहाँ कंट्रोल में थी और तुम भी बहुत बोलते थे, जब फिजा भाभी के साथ ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई तो मैं किस मुंह से अपनी माँ और बहन को रोकूं। जहाँ पर सरफराज कहेगा कि तुम अपनी हद में
में रहो, वो मेरा जाती मामला था। और तब खिजर कहेगा कि अच्छा तो वो तुम्हारा जाती मामला था, यहाँ पर भी हम चुप रहें और ना बोलें और मैं अपनी हद में रहूं। तुम भूल रहे हो शायद ये भी मेरा जाती मामला है और सुम्बुल मेरी बीवी है, वो नाराज होकर आई है और मैं उसका शौहर होने के नाते उसे मनाने आया हूँ और मैं उसे मनाकर ले भी जाऊंगा, तुम अपनी बकवास बंद रखो। और तब सरफराज कहेगा कि मैं इसमें अपना मुंह क्यों बंद रखूं, ये मेरी बहन का मामला है और मैं अपनी बहन के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तब खिजर कहेगा कि फीजा भाभी भी तो किसी की बहन थी, तुमने तो उसके साथ जो कुछ भी किया उसमें तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा और तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारी भी बहन है। अब जब वही सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है तो तुम्हें बड़ा दर्द उठ रहा है। जहाँ फिर यहाँ पर सरफराज हत्थे से उखड़ जाएगा और खिजर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा करेगा। और तब सुम्बुल बाहर आकर खिजर से कहेगी कि खिजर या तो तुम घर का अलहदा से बंदोबस्त कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन मुझे बहुत बातें सुनाती हैं। तब खिजर कहेगा कि तुम भी तो यही सब कुछ करती थी, अब अगर मेरी बहन और मेरी माँ ने थोड़ी सी बातें क्या सुना दी, तुम तो अपने घर भाग आई हो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो वहीं पर रहना होगा, वरना यहीं पर रहती रहो। वैसे भी तुम्हारी बहुत लंबी जुबान है जैसे तुम्हारे भाई की, मुझे तो अब ये रिश्ता खतरे में लग रहा है। जिसके बाद सरफराज खिजर को धक्के मारकर घर से निकाल देगा। जहाँ दूसरी तरफ कशमाला भी सोचेगी कि अभी तक जाफर ने दुआ को तलाक के पेपर्स क्यों नहीं भेजे, और फिर जैसे ही वो जाफर से पूछेगी कि जाफर तुमने अभी तक दुआ को तलाक के पेपर्स क्यों नहीं भिजवाए, तो जाफर कहेगा कि बीबी साईं अभी तक पेपर्स बने नहीं हैं। और तब कशमाला को समझ आ जाएगी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है जाफर, और अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो देखना मैं तुम्हारा कितना बुरा हशर करूंगी और तुम याद रखोगे। जहाँ फिर जाफर कहेगा कि बीबी साईं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपके हुक्म का मुंतजर हूँ, या मैं साईं के हुक्म का मुंतजिर होता हूँ, जो आप लोग मुझसे कहेंगे मैं तो वही करूंगा। और तब कशमाला कहेगी कि ठीक है जाओ यहाँ से। जिसके बाद कशमाला को भी मुझे लगता है कि उसके गुंडों का फोन आएगा और वो बताएंगे कि हमने सरफराज को किडनैप कर लिया है और वो हमारे पास है, उसको अभी बंद करके कमरे में फेंका है। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि बहुत अच्छा, ये शख्स मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, इसको सारी की सारी सच्चाई मेरी मालूम है और इसके पास जो फोन है उसमें सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये अगर नौशेरवा को मेरे खिलाफ सबूत दे देगा तो नौशेरवा मुझे छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग इसका मुंह बंद कर दो और इसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो। जहाँ मुझे यही लग रहा है कि जैसे ही कशमाला ये सारी बातें कर रही होगी, यहाँ पर बाबा साईं सारी की सारी बातें सुन लेंगे, जो कशमाला का ऐसा खतरनाक रूप देखकर खुद भी डर जाएंगे। जहाँ फिर कशमाला फोन पर ही सारी की सारी बात बता देगी और कहेगी कि नौशेरवा को अगर पता चल गया तो वो और मेरा रिश्ता सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और तुम्हें पता है मैंने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैंने तो जवाल को भी अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि मैं नौशेरवा को पाना चाहती थी, और अब ये मेरे रास्ते में आकर मेरे लिए रोड़े अटका रहा है, तो इसको ऊपर पहुंचाने में तुम जरा भी देर मत करना। जहाँ फिर जैसे ही बाबा साईं सारी की सारी बातें सुनेंगे और उनको पता चलेगा कि कशमाला ने जवार को भी मरवाया है, तो वो हद से ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और तब कशमाला से कहेंगे कि कशमाला तुम थी इन सब के पीछे, तुमने जवार को मरवाया था, तुम्हें शर्म नहीं आई? नौशेरवा को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई, और मुझे तो यही लग रहा है कि दुआ के साथ भी जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा ही हाथ है, तुम ये सब कुछ कर रही थी। जहाँ कशमाला तो बाबा साईं को अपने सामने देखकर डर जाएगी। जहाँ मुझे यही लग रहा है कि कशमाला जैसे ही बाबा साईं को देखेगी तो बाबा साईं को सारी की सारी सच्चाई पता चल गई है, कशमाला बाबा साईं को भी नहीं छोड़ेगी और यहाँ पर हो सकता है कि वो बाबा साईं को भी गला घोंट कर मार दे, क्योंकि इस ड्रामे में एक अदद मौत का सीन डाला गया है, जहाँ मुझे ये लग रहा है कि बाबा साईं की ही मौत कशमाला के हाथ होने वाली है। जिसके बाद कशमाला जवार और बाबा साईं को मारने का जुर्म एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, और जैसे ही जाफर भी नौशेरवा के सामने कशमाला की सच्चाई लाएगा और उसे पता चल जाएगा कि सरफराज कशमाला की गिरफ्त में है, और अब मुझे यही लग रहा है कि जहाँ फिर जाफर कशमाला को बताए बगैर सरफराज तक पहुँच जाएगा और सरफराज को कशमाला की गिरफ्त से आजाद करवा देगा, जिसके बाद वो सरफराज को लेकर नौशेरवा के सामने पेश कर देगा। जहाँ फिर सरफराज कशमाला के खिलाफ सारे के सारे सबूत नौशेरवा को दे देगा और तब नौशेरवा कशमाला की सच्चाई सबके सामने खोल देगा। जहाँ फिर नौशेरवा को ये भी पता चल जाएगा कि कशमाला ने ही
जवार और बाबा साईं को भी मरवाया है, जिसके बाद अब कशमाला की बहुत बुरी हालत होने वाली है। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि 2 कत्ल करने के जुर्म में कशमाला खुद ही अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगी और पागल हो जाएगी, जिसके बाद कशमाला को तो पागल खाने भर्ती करवा दिया जाएगा। जहां मुझे यही लग रहा है कि नौशेरवा कशमाला को तलाक नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जवार की बीवी रह चुकी है वो, जिसकी वजह से नौशेरवा उसे पागल खाने तो जरूर भर्ती करवाएगा, लेकिन शायद कशमाला को तलाक ना दे। और इस ड्रामे के एंड पे नौशेरवा, दुआ और बच्चे साथ रहेंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।